हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। आज हम आगे +2 में प्रोबेबिलिटी चैप्टर को आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें हमारा 13 जो चैप्टर प्रोबेबिलिटी है, एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो गई है। 13.2 में क्वेश्चन अप टू 12 कंप्लीट हो गया। अब इसमें प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज देयर, उसका यूज हो रहा है। एंड कंडीशनली प्रोबेबिलिटी से ही ये टेकन आउट हुआ है। एंड सेट थ्योरी ओके आर यूजिंग। तो नाउ हियर properties of the conditional probability also using. So now question number 13 to 16 today, and today is the 8th lecture on this chapter 13. 7 lecture over completed. Now this question number 8 in NCERT book is two balls are drawn with replacement. विद रिप्लेसमेंट का मीनिंग एक बॉल निकाली और उसको उसी में वापस रख दी, बैग में ही। फ्रॉम ए बॉक्स में रख दी। कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स, उसमें 10 ब्लैक बॉल है, 8 रेड बॉल हैं। ओके, तो टोटल बॉल कितनी हो गई? सॉल्यूशन, टोटल बॉल इन बैग। ओके, टोटल balls in a box कितनी है? टोटल बॉल इक्वल ब्लैक प्लस रेड। ओके, ब्लैक प्लस रेड। अब ब्लैक कितनी है? ब्लैक है 10, तो 10 प्लस रेड कितनी है? 8। देन टोटल 10 plus 8, 18 balls are there. So from 18 balls at random, one ball taken and replaced, again one ball taken. Both balls are red. So probability of first part, probability of red ball, red ball, red ball, रेड बॉल। ठीक है, बोथ रेड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड फेवरेबल अपॉन टोटल 18, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, अगेन रेड रिप्लेस करके 8 अपॉन 18। देन सिंप्लीफाई, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, then 4 4 जा 16 upon 9 9 जा 81. This is your answer. Okay beta, now these are red ball here, that's why red are here favorable 8. So now second part, probability of second part, first ball is black and second is red. Black, first is black and second is red. Black and red ball, ठीक है। Then black, first is black. Black how many? 10 black are there. 10 upon 18, फिर उसको उसी में रिप्लेस कर दिया,
बट लेनी है अब क्या, रेड. सेकेंड बॉल इज रेड. 8/18. Then simplify. 2 5 are 10, 2 9 are 18, 2 4 are 8, and 2 9 are 18. 5 4 are 20 upon 9 9 are 81. Okay, this answer. Now third part. Third part is third. One of them is black and other red. The probability of one is black, other is red. तो पहली ब्लैक, दूसरी रेड, ब्लैक रेड बॉल, और अंडरस्टैंड, और रेड ब्लैक, रेड रेड ब्लैक. This probability of this or this, probability of this or probability of this. Then or means addition, and here black red. First black how many, 10, 10/18 into red ball, red 8 favorable, 8/18. Or means plus, first red 8/18, second black 10 favorable. This simplify. So 2 4 are 8, 2 9 are 18, 2 5 are 10, 2 9 are 18. Then similarly this, then 5 4 are 20/81 plus 20/81. Then LCM 81, so 20 plus 20, 40/81. Okay, this is answer. Clear? Now all these three parts done. Similarly, next question. Yes, beta. Now next question. Question number 14. Probability of solving specific problem. कोई एक specific problem है, उसको solve करने की probability, अब वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं बाई ए एंड बी, यानी एक के सॉल्व करने की प्रॉपर्टी दूसरे के सॉल्व करने की प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करती, यानी इंडिपेंडेंट है दोनों ए एंड बी. तो ए एंड बी आर 1/2 and 1/3 रेस्पेक्टिवली. ए की सॉल्व करने की प्रॉपर्टी हाफ है और बी की सॉल्व करने की प्रॉपर्टी 1/3 है. इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, अलग अलग दोनों सॉल्व करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट द प्रॉब्लम इज सॉल्व. अब प्रॉब्लम इज सॉल्व, सॉल्यूशन. प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब क्या? सेकेंड पार्ट, exactly one of them solved. Exactly one of them solved means probability of A solved अब A solved, B not solved. Or exactly one solved. Or probability of B solved
है ना, बी सॉल्व, बी सॉल्व, ए नॉट सॉल्व, then A solved, probability A solved 1 upon 2 and B not 1 minus 1 upon 3. B solved की probability 1 upon 3, not solved 1 minus 1 upon 3. So 1 minus 1 upon 3 means 2 upon 3. Or means plus. Or means plus. B solved 1 upon 3. B solved की probability into A not solved. A not, A solved की probability 1 upon 2 and not 1 minus 1 upon 2. Then this 2 से 2 cancel. Then 1 upon 3 plus 1 1 जा 1 upon 3 2 जा 6. Then LCM 6. Then 2 LCM 3 2 जा 2 1 जा 2 plus 1. Then 3 upon 6. Then 1 upon 2. Answer. Okay? Clear? Okay. हाँ बेटा, ये दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व फर्स्ट पार्ट. तो प्रॉब्लम सॉल्व का मीनिंग ए सॉल्व एंड बी सॉल्व, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ नॉट सोल्ड 1 माइनस, देखो बोथ सोल्ड बोथ नॉट सोल्ड, या मतलब हो गया प्रॉब्लम सोल्व. या तो बोथ सोल्व कर रहे हैं, बोथ नहीं सोल्व कर रहे हैं, तो 1 माइनस नॉट सोल्ड की प्रोबेबिलिटी आएगा इसमें. प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ both solved, both not solved, both not solved, not solved. This तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बोथ नॉट सोल्ड, यानी नॉट सोल्ड ए नॉट सोल्ड 1 अपॉन 2 इंटू बी नॉट सोल्ड 1 माइनस 1 अपॉन 3 2 अपॉन 3. बी नॉट सोल्ड, बोथ नॉट सोल्ड this. So then this will be equal to 1 minus 1 upon 3. 2 से 2 cancel, 1 upon 3. 1 minus 1 upon 3 equal 3 1 जा 3 minus 1 2 upon 3. So this problem solved की probability 2 upon 3. Answer. Okay? Clear? And now this second part, probability of एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम. यहाँ क्लियर है कि ए सॉल्व कर रहा है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व, तो ए सॉल्व कर सकता है, बी नहीं, और बी सॉल्व ए नहीं. तो ए सॉल्व की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 2 इंटू बी नॉट सॉल्व 1 माइनस 1 अपॉन 3 2 अपॉन 3. और मीन्स प्लस बी सॉल्व 1 अपॉन 3. A not solved 1 minus 1 upon 2, 1 upon 2, not solved by A 1 upon 2. Then simplify, 2 cancel, 1 upon 3 plus 1 upon 6. 1 upon 3 plus 1 upon 6, LCM 6. 3 2 ja 2 1 ja 2 plus 1, 3 upon 6.
than 1/2. So exactly one of them solved probability is 1/2 and प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब ये नहीं पता किसने सॉल्व की है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी फुल सैंपल स्पेस में से माइनस होगा नॉट ऑफ दिस, यानी सॉल्व प्रॉब्लम 1 माइनस नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्व का मतलब ए ने भी सॉल्व नहीं किया एंड बी ने भी सॉल्व नहीं किया, तो 1 माइनस ए नॉट सॉल्व 1/2, बी नॉट सॉल्व 2/3 multiply, then this is 1/3, so 1 minus 1/3 then 2/3, problem is solved। clear? this full sample space में से आएगा कि 1 minus problem not solved। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यस बेटा, हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। वन कार्ड इज ड्रॉन at random from a well shuffled deck of 52 cards। जो प्लेइंग कार्ड है 52 कार्ड्स, हम जानते हैं उसमें 4 सूट होते हैं, ओके 13 के, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड, ओके। ईंट, चिड़िया, पान, हुक्म। 2 इसमें ब्लैक कलर होते हैं सूट और 2 इसमें रेड कलर के होते हैं, ओके। और हर सूट में 13 कार्ड होते हैं। इन 13 कार्ड में एक 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 होता है और 3 फेस कार्ड होते हैं, बाकी नंबर कार्ड होते हैं। फेस कार्ड में गुलाम, बेगम, बादशाह, जैक, क्वीन, किंग, ये होते हैं। तो इनकी नॉलेज आपको पता है, +1 में किया है, ओके 10th में भी किया है। तो नाउ हियर यू आर इन +2, सो यू नो वेरी वेल। फेस कार्ड 12 होते हैं पूरे 52 कार्ड में, ओके। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस आर द इवेंट्स ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। नीचे 3 केस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इनमें कौन से केस में ई एफ जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है, किस केस में है इंडिपेंडेंट, वो बताना है। तो फर्स्ट केस सॉल्यूशन, फर्स्ट केस द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड, तो ई प्रोबेबिलिटी ई निकालो। फर्स्ट केस, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड। स्पेड कितने होंगे, 13 है फेवरेबल, तो 13/52, ओके। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, फर्स्ट केस में एफ है हमारा द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। कितने एक होते हैं, 4 एक होते हैं, कोई सा भी आ सकता है, टोटल 52 कार्ड। अब इनमें कॉमन बताओ, कॉमन की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, अब ये चेक करिए कॉमन। अब एक है तो इसमें चारों सूट का एक एक होता है, और ये आपका है स्पेड। स्पेड में एक सूट में 13 कार्ड जो है उनमें एक है, तो एक कॉमन हो गया स्पेड का यहाँ भी। तो इसमें 1 कार्ड इज कॉमन कार्ड in these both E and F and divide by 52। इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ये बन गई, ओके। नाउ चेकिंग इंडिपेंडेंट, चेकिंग इंडिपेंडेंट, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ
must be equal probability of E into probability of F, ये होनी चाहिए। तो इनमें कॉमन एलिमेंट आपका 1 है, टोटल सैंपल है पूरा 52, ओके। एंड ई की प्रोबेबिलिटी हमारा 13/52 इंटू एफ प्रोबेबिलिटी 4/52, तो ये तो वन नो फॉल्स, ये फॉल्स है, तो फर्स्ट केस में नो, तो फर्स्ट केस में तो हो गया आंसर नो। सेकंड केस चेक करो, सेकंड ई द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इन सेकंड केस ब्लैक कार्ड, ब्लैक, अब ब्लैक में तो हमारे दो सूट होते हैं, 13/13 फेवरेबल अपॉन 52, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इन सेकंड केस, कार्ड ड्रॉन इज ए किंग, सेकंड केस किंग है हमारे पास, तो किंग कितने फेवरेबल हो गए 4/52, एंड इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, कॉमन एलिमेंट एक तो किंग एंड एक है ब्लैक, अब ब्लैक कार्ड दो सूट हो गए तो दो किंग, चार किंग में उनमें दो किंग ब्लैक हैं दो रेड हैं, तो दो किंग जो है ये ब्लैक वाले कॉमन होंगे अपॉन 52, क्या ये इक्वल है? चेक, चेकिंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्या ये ट्रू है? प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन ऑफ 2/52, क्या ये इक्वल टू 26/52 इंटू 4/52, क्या इक्वल है? ये भी इक्वल नहीं होंगे, देखो चेक करो, 13 2 जा यस, 2/52 तो यस ट्रू, ये ट्रू है, यस। सेकेंड पार्ट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड चेक करो, कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और क्वीन, थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्वीन और किंग का मतलब और मीन्स एडिशन, किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग 4/52 प्लस क्वीन, किंग 4 है क्वीन भी 4 है, 4 सूट है, तो 4/52 और 4/52, तो कितना हो गया 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 4/52 और मीन्स प्लस 4/52, ये बन गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ क्या है? द कार्ड इज ए क्वीन और जैक, ए क्वीन, अब क्वीन चारों सूट में क्वीन है तो 4 क्वीन हो गई, और
जैक जैक भी 4 हैं। ओके, इसके बाद कॉमन ई इंटरसेक्शन एफ। अब कॉमन देखिए दोनों में, यहां किंग और क्वीन है और क्वीन, यहां क्वीन और जैक, तो क्वीन कॉमन हो गया, क्वीन कॉमन हो गया दोनों में, तो मीन्स क्वीन, क्वीन कितनी है 4, 4/52 ये। तो क्या इनका प्रोबेबिलिटी देखिए, ये 8/52 इंटू 4 + 4 8/52, क्या ये इक्वल है 4/52 के? नो, नो, इक्वल नहीं है। सो ओनली सेकेंड पार्ट इज योर आंसर फॉर द इंडिपेंडेंट ऑफ ई एंड एफ। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। What is in a hostel 60% of the students read Hindi newspaper, 40% read English newspaper and 20% read both Hindi and English newspaper. Common. A student is selected at random. Find the probability that she reads neither Hindi nor English newspaper. Okay. Second, if she reads Hindi newspaper, find the probability that she reads English newspaper. If she reads English newspaper, find the probability that she read हिंदी न्यूज़पेपर। कंडीशनल, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और फर्स्ट में डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी है किसकी? नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। तो सॉल्यूशन, let Hindi newspaper set, papers, Hindi newspaper set, papers reading event represented by H, English newspaper reading event represented by English E. Okay. So according to question, so probability of, understand, probability of she reads neither Hindi, neither Hindi means not Hindi, means Hindi complement, and nor, and means intersection, nor English E complement. This we have to find. So this for A part this we have to find. So this means probability of 1 minus complement of that. 1 minus probability of not Hindi, intersection, not English, complement of this. Okay. Then this implies 1 minus probability of this. तो इसको complement को inside करेंगे, क्या बनेगा? probability of complement का complement
H कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट H हिंदी इंटरसेक्शन का यूनियन, डिमॉर्गन्स लॉ, E कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दिस, तो दिस H union E. So this we have to find. So for A part, first you take probability of AH, probability of H 60%, 60%, probability of 60% न्यूज़पेपर हिंदी, तो 60% टोटल लेट x 60% ऑफ x डिवाइड बाई x, दिस प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर 40% रीड इंग्लिश, 40% टोटल x मान लिया, तो 40% ऑफ x डिवाइड बाई x, x कैंसिल दिस, ओके। देन इंटरसेक्शन कितने दोनों जो पढ़ते हैं, एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी एंड मीन्स इंटरसेक्शन इंग्लिश given here 20%, okay, this. Then what is the union, okay, so probability of H union E equal probability of H plus probability of E minus probability of H intersection E. Then this probability of H 60%, 60% means 6/10 plus 40/100, 4/10 minus 20%, 2/10. Then this 1 minus 2/10. This is probability of H union E. Probability of H union E equal this. Solve this. Then कितना बन गया, 10/10, 1 minus 2/10, 10 minus 8/10, 8/10 means 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4/5. So union 4/5. Putting here, so probability of not Hindi, not English is equal to 1 minus union probability of Hindi union English. This formula, okay, De Morgan's law से, so this 1 minus union probability 4/5, 4/5, then 5 minus 1, 5 minus 4, then 1/5. This answer of this first part. Find the probability that she reads neither Hindi nor English, then 1/5. Clear? Okay. Now second part. What is second? Second is this event represented by H
and English newspaper reading event, this is E. So then probability of B part, reads Hindi newspaper, probability of Hindi H is equal to, हिंदी कितने 60%, 60/100 सॉल्व किया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, हिंदी हो गया. ओके. आफ्टर दैट बी, इफ रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द, सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर. तो इंग्लिश न्यूज़पेपर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर 40/100 is equal to this 2/5. Intersection common, probability of E intersection F, sorry, E intersection H, this common 20%, this 2 5 is 10, 1/5. Okay, so B part, find the probability, find that C reads English newspaper, and if C reads Hindi newspaper, it is given that, it is given, so we have to find according to question, it is given that के हिंदी न्यूज़पेपर, find the English, तो find English E, condition on it is given that she reads Hindi newspaper, this we have to find. So this will be equal to probability of E intersection H divided by probability of H. This intersection probability 1/5 divided by probability of H 3/5. 3/5. रेसिप्रोकल कैंसिल 5 से 5, तो 1/3 आंसर. ओके. She reads Hindi newspaper, find that she reads English newspaper. If she reads English newspaper, find that she reads Hindi newspaper. So find the probability of she reads Hindi newspaper when it is given that she reads English newspaper. So condition on E, then probability of E intersection H, same or H intersection E, divided by probability of E English. Then this intersection 1/5 divided by English newspaper probability 2/5, divided by 2/5, simplify reciprocal, 5 cancel, then 1/2 answer. So this easy question to understand the statement. Okay, done. Okay, like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact. और उन पेरेंट्स को भेजे जिनके बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं NCERT CBSE बोर्ड से. ओके, हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों मीडियम में कहीं भी पढ़ रहे हो, उनको आप भेजें और उनको ये गाइड करें कि आपको पहले सब्सक्राइब करना होगा चैनल, तब वे वीडियो खुलेंगी. उनका एक एक लिंक है, एक 10th क्लास का सारी वीडियो, फुल सिलेबस NCERT solution, every concept, every exercise, every question in that one link of 10th class. इसी तरह से 11th क्लास का एक लिंक है, उसी में सारी वीडियो है 11th क्लास की. फिर एक लिंक 12th क्लास का मिलेगा, उसमें सारी वीडियो 12th क्लास की होंगी. तो आप उसको खोलकर आराम से कोई भी जो भी आपकी क्वारी है उसको दूर कर सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन, किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी कंसेप्ट आपकी समझ में नहीं आ रहा, फॉर्मूले का प्रूफ है,
सब आप देख सकते हैं और उनको ये गाइड करना है, ठीक है। और ये भी कहना है कि आगे अपने फ्रेंड को भी वो फॉरवर्ड करें, जिससे कि उनका भी बेनिफिट हो, उनको भी सेम गाइड करें। तो फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल, जिसने से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो पहले सब्सक्राइब कर लें, तभी वो वीडियो को लिंक को खोल सकते हैं, अदरवाइज जो लिंक नहीं खुलेगा उनको गाइड कर देना। और ये गाइड करना है कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो का फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर देना, मैं उसका इंतजार करूंगा। ओके, मैं उसके वेट में हूँ। थैंक यू।